Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 6th standard maths operation on fractions. In that we have completed till the word problems of the multiplication. So now here we are going further with the new question, that is reciprocal. Now what is meant by reciprocal? Before going to the actual exercise or a question, we are supposed to see. Now reciprocal means exactly opposite. Exactly opposite का मतलब क्या है? फ्रैक्शंस में अगर हमारे यहाँ पास फ्रैक्शन है 11/2, तो इसका रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि ये फ्रैक्शन को हमको 1 से डिवाइड करना है. जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से करेंगे, 11/2 डिवाइडेड बाय 1/1. तो इसका मतलब ये हुआ कि 11/2 इंटू 1 इंटू 1. तो इसको किस तरह से करते हैं? यहाँ पर ये वाला जो 2 है ये न्यूमरेटर में चले जाता है और ये 11 जो है ये डिनोमिनेटर में आएगा. तो आंसर जो है इसका इस तरह से होगा रेसिप्रोकल का कि 2/11. यानी रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर बनाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाएंगे. तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बना देना है और न्यूमरेटर की जगह पे हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर की जगह पे न्यूमरेटर लिखेंगे. तो इस तरह से रेसिप्रोकल हमको मिलता है. तो लेट अस गो फर्दर विद द क्वेश्चन वी आर हैविंग. फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग 7. सो व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट? 1/7. दूसरा क्वेश्चन है 11/3. सो रेसिप्रोकल ऑफ इट विल बी 3/11. Similar way we are having another question 5/13, that will be equal to 13/5. Then another question we are having 2, so the reciprocal of 2 will be equals to 1/2. Another one we are having 6/7 is equals to 7/6. Then another question we are having 1. So reciprocal of 1 will be always 1 because 1/1 means 1 only. So here the another question we are having 1/100 is equals to 100/1. So here we have solved the question of the reciprocals. Now further we will go with the another question. Now here carry out the division, that question we are going to solve forward. So out of it the first one 2/3 divided by 1/4. अब ये 2/3 divided by 1/4 ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसको किस तरह से करना है? हम यहाँ पर 2/3 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे और 1/4 का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर डिवीजन में तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करके लेंगे. यानी ये क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे. तो 2 4s are 8, 3 1s are 3. So the answer is 8/3. Now first one I have did, second one you will do. I am going to solve the third question. Now what is the third question given is 3/7 divided by 5/11. So here 3/7 into 11/5, that will be equals to 3 11s are 33 upon 7 5s are 35. So this is your answer. Now further fourth question you are supposed to do. I will do the fifth one. So your fifth question is given 4/7 divided by 2. ये 2 को अगर ये कंफ्यूजन में है तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4/7 divided by 2/1. इस तरह से ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसका 2/1 का रेसिप्रोकल करेंगे. तो यहाँ पर ये कैसे हो जाएगा? 4/7 into 1/2 is equals to 4 1s are 4
अपॉन 7 टू ज़ा 14। तो यहाँ पर 4 अपॉन 14 इज द आंसर। अब ये इसको जो है हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कैसा आएगा यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। तो हमारा मेन आंसर क्या आता है, 2/7। नाउ 6 you will do. I am going to solve the 7th question for you, which is 20 upon 8/11. Now similar way, 20 is given, 20/1 divided by 8 upon 11. Now reciprocal we are going to take 20 upon 1 into 11 upon 8. Now let us divide this over here. 4 2s are 8, 4 5s are 20. So 5 into 11 upon 2, because 2 1s are 2. So it will be 55 upon 2 is the answer. Now the next question which we are going to solve is the 9th question. So here 9th question I am solving here is the 1/5 divided by 2. Now here what is the given one? Here it is the mixed fraction given. We are supposed to solve this mixed fraction first. 2 into 5 plus 1 divided by 5 divided by 2. So here 2 5s are 10, 10 plus 1 11, 11 upon 5 divided by 2. Now let us go further with that. 11 upon 5 divided by 2 upon 1. Therefore 11 upon 5 into 1 upon 2 है ना। फिर उसके बाद 11 1 11, 2 5 10. So the answer is 11 upon 10. तो इस तरह से जो है बाकी के सम्स आपने सॉल्व करने हैं. Let us go further with the next question, that is solve the following. Now the first question out of the solve the following, this is the word problem based on the division method. So here there were 420 students participating in the Swachh Bharat campaign. They cleaned 42 upon 75 part of the town Sevagram. What part of the Sevagram did each student clean if the work was equally shared by all? आपको क्या पूछा है कि स्वच्छ भारत अभियान में जो है कम से कम 420 बच्चों ने जो है पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से हर बच्चे ने जो है टाउन का मिल करके कितना पार्ट क्लीन किया है, 42 अपॉन 75 पार्ट क्लीन किया है. तो आपको ये बताना है कि हर बच्चे ने इक्वली अगर काम किया है तो उसने कितना काम एक्चुअल में किया है. तो यहाँ पर हमको क्या लिखना रहेगा, टोटल नंबर ऑफ, वी आर सपोज टू राइट डाउन द डेटा विच वी आर हैविंग. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल number of students participated is equals to 420 है ना. फिर उसके बाद क्या है, how much the part of town clean. So part of town that cleaned is equals to 42 upon 75 of the part. ये हो गया. अब हमको क्या करना है, हर स्टूडेंट ने कितना काम किया है. Therefore each student worked is equals to number of the student divided by the 42. So 420 divided by 42 upon 75. So here it will be
420 divided by यहाँ पर इस तरह से लेंगे 42 upon 75 divided by 420 students. So therefore 42 upon 75 into 1 upon 420. यहाँ पे हमने डायरेक्टली आपको लेकर के बताया क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का हम अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन 420 आएगा. तो इस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे. तो अब ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10. तो ये वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1 अपॉन 75 इंटू 10, ऑब्वियसली 750. सो हियर देयरफॉर each student cleaned 1 upon 750 part of the town. इस तरह से. Question number 2. Sudha had ate 3/4 meter long rope. She cut it into 7 equal parts. Find the length of each piece of the rope. सुधा के पास एक रोप है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है 8 3/4 मीटर लॉन्ग, और उसने इस रोप को इक्वल 7 पार्ट्स में कट किया है. तो हर पार्ट की एक्चुअल लेंथ आपको बतानी है. तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारे पास डेटा है हम पहले उसको लिखेंगे. सो length of the rope is equals to 8 3/4 मीटर. तो यहीं पर इसको हम सॉल्व करेंगे. 8 इंटू 4 प्लस 3/4. देयरफॉर 8 4 जा 32, 32 plus 3, 35 upon 4. So here 35 upon 4 meter is the length of the rope. Now the number of pieces. How many pieces she have cut down in a 7 equal piece? Number of pieces is equal to 7. Now here therefore length of each piece is equals to 8 3/4 meter divided by 7. That will be exactly equals to 35/4 divided by 7. So here 35/4 into 1/7. 7 1s are 7, 7 4s are 7 5s are 35. So the length is 5/4. Now if we divide it in the further, so we will get it 1/4 meter long. So therefore each length of each piece of rope is equals to 1/4 meter. Going to solve the cost of 5/8 liters of a milk is 37/1/2. What is the cost of 1 liter of the milk? मतलब आपको क्या बता रहा है कि अगर
5 एंड 5/8 लीटर ऑफ मिल्क का कॉस्ट जो है 37 1/2 रहेगा। तो आपको एक्चुअल में 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट बताना है। So here first of all we'll write down the data. What is the data given that we will see over here? So quantity of the milk, कितना मिल्क है हमारे पास यहाँ पे 5/8 लीटर्स है ना। अब आपको क्या बोला है कि उसका कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ द मिल्क, कॉस्ट ऑफ द मिल्क इज इक्वल्स टू 37 1/2 rupees. Now after this what we are going to do, for finding out the 1 liter of a cost of a milk we are supposed to divide this by this. मतलब हम क्वांटिटी को उसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो मिल्क है हमारा वो यहाँ पर ये है, क्वांटिटी ये है, तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है हमको 1 लीटर मिल्क का कॉस्ट मिल जाएगा। सो हियर therefore cost of 1 liter of milk is equal, so the cost of 1 liter of milk will be exactly equals to 37 upon 1/2 divided by 5/8। ये इस तरह से लेंगे। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हमको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर इसको किस तरह से करेंगे हम, 37 into 2 plus 1/2 divided by 5 into 8 plus 5 divided by 8. So that will be exactly equals to यहाँ पे ये वाला 75/2 divided by 45/8। ये किस तरह से है, 37 into 2 is equals to 74 plus 1 is equals to 75/2 और ये 5 8 40 40 plus 5 तो 45/8। तो अब ये वाले को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल इस तरह से आएगा 75/2 into 8/45। ये हो गया, यहाँ पे 2 1 2 2 4 8। अभी हम इसको अगर 15 के टेबल से डिवाइड करें तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहाँ पर कैसा आ जाएगा, 15 3 45, 15 या 15 5 75, 15 5 75। तो यहाँ पर हम जो है इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करके लेंगे, देखिए ध्यान से, 4 5 20 अपॉन 3 1 3, तो ये हो गया हमारा 20/3। अब ये 20/3 को अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2/3 रुपीज़। यहाँ पर भी हम रुपीज़ लिखेंगे। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क is equals to 62/3 rupees. Now the fourth question we are going to solve. The cost of 10 kilograms of the sugar is 62 1/2 rupees. What is the cost of 1 kilogram of a sugar? It is very simple. आपको 10 किलो शुगर का कॉस्ट दिया हुआ है, आपको 1 kg ऑफ अ शुगर का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो शुगर का कॉस्ट दिया है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ शुगर इज इक्वल्स टू 62 1/2
rupees. Now, quantity of sugar is equals to 10 kilograms. So therefore, that should be divided here. Cost of 1 kg of sugar is equals to 62 1/2 divided by 10. So therefore हम इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा 62 इंटू 2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 10. सो यहाँ पर 62 टू ज़ा 2 टू ज़ा 4, 6 टू ज़ा 12, 12 प्लस 12 है ना. तो यहाँ पर 124 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 10. Therefore 125 by 2 divided by 10. That will be exactly equals to यहाँ पे इस तरह से 125 divided by 2 into 1/10. अब इसको क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे. तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10. और यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास 5 5 ज़ा 25. तो ये कितना हो गया 25/4, 25/4 रुपीज़ इज इक्वल्स टू, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 61/4 रुपीज़. देयरफॉर cost of 1 kilogram of sugar is equals to 61/4 rupees. इसी के साथ हमारा ये पूरा लेसन कंप्लीट होता है. आप जो है रिमेनिंग एक्सरसाइज, रिमेनिंग सम्स खुद सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर सॉल्व करना सीखेंगे. आपके लिए इतना ही. ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है लाइक और सब्सक्राइब करने की और आगे शेयर करने की. अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर.